today start with the chapter 6, combustion and flame. Combustion, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, combustion means जलना, एंड फ्लेम, जलने के बाद जो एक लपटें उठती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेम. Now we will study about these two things, combustion and flame, these two things in this chapter. So let's start it. First of all, we will discuss what is combustion. Dear children, combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to produce heat. कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और उस रिएक्शन के बाद उसमें से हीट निकलेगी तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंबस्शन. एंड समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबस्शन, ईदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू लाइट अ कैंडल, as shown in this picture, you light a candle, what happens? A flame is produced like this. And when you आपने दिवाली के समय फुलझड़ी जलाई होगी तो उसमें जब फुलझड़ी में से ग्लो निकलता है, पहले आग लगती है फिर उसमें वो ग्लो करती है, तो कोई चीज़ चमकती है तो उसमें से हल्की फुल्की लाइट निकलती है. तो इस प्रोसेस को जब हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो, जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और हीट एंड लाइट कभी कभी प्रोड्यूस होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंबस्शन. नाउ ऐसा सब्सटेंस, अभी हमने बात बोला ना, जब कोई सब्सटेंस रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ, तो ऐसा सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विच अंडरगोज, जिसमें आग लगे, विच अंडरगोज कंबस्शन इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस. तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें आग लगती है, जो जलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल सब्सटेंस. इट इज ऑल्सो नोन एज अ फ्यूल. It is also known as a fuel. So, a combustible substance is a substance which undergoes combustion, and it can also be called as fuel. Now, dear children, can you suggest the conditions necessary for combustion? Actually, children, there are three conditions necessary for the combustion to take place. Number one is fuel or combustible substance. Number two, air. Number three, ignition temperature. Please note down, children, a substance will not burn without one or more of these conditions. अगर एक इन कंडीशन में से एक भी चीज़ मिसिंग है तो कंबस्शन नहीं होगा, उसमें वो जलेगा ही नहीं. सो देर आर थ्री थिंग्स. नंबर वन, फ्यूल. नंबर टू, एयर से क्या मिलेगा? ऑक्सीजन. सो नंबर टू, ऑक्सीजन. एंड नंबर थ्री इज इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर से ही तो हीट प्रोड्यूस होगी ना. सो वी विल लर्न वन बाय वन all these three conditions necessary for photosynthesis. Number one, combustible substance. I have just told you that the substances which burn in air to produce heat and light are called combustible substances. You can very well see the different examples of the combustible substance shown in this slide, like wood, coal, charcoal, LPG gas, kerosene, petrol, diesel, CNG. All of them which are shown here or which are mentioned here are the combustible substances. Okay, तो combustible substance का होना बहुत ज़रूरी है, otherwise combustion नहीं होगा. Okay, air is necessary for combustion to take place.
We can also call combustion as burning in common language. Okay, so you can perform this experiment at home. This experiment which is shown in the slide, you can perform this experiment at home under the guidance of your parents, in the presence of your parents. What you have to do is you have to fix a candle on the table. Okay, and you have to light this candle, and you have to put a glass chimney over this on this table over this candle, and you have to rest this chimney in such a way on two wooden blocks. ये दो wooden blocks नज़र आ रहे हैं, इस तरह से आपको इसको एडजस्ट करना है ताकि एयर यहाँ से एंटर कर सके. ठीक है, और ऑब्जर्व करना है क्या आपकी कैंडल जलती रहेगी या बुझ जाएगी. ओके, उसके बाद नाउ यू हैव टू रिमूव ये दोनों ब्लॉक्स, ये जो वुडन ब्लॉक्स 1, वुडन ब्लॉक 2, you have to remove the blocks and let the chimney rest on the table as shown in the figure B. Okay, फिर आपको फ्लेम को नोट करना है. क्या फ्लेम, क्या कैंडल अभी भी जल रही है. ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, सी जैसे सी में दिखाया है, चिमनी के ऊपर एक ग्लास की कवर रख दो या ग्लास की प्लेट रख दो, और फिर आपने नोट करना है कि क्या कैंडल अभी भी जल रही है. यू विल फाइंड दैट इन ए द कैंडल बर्न्स फ्रीली. ए फिगर में कैंडल जो है बड़े आराम से जलती है क्योंकि एयर की सप्लाई यहाँ से नीचे से बहुत अच्छे से हो रही है. Okay, in B the candle stops burning in B because air does not enter the chimney from below. यहाँ नीचे से आ नहीं रही है, ऊपर से थोड़ी बहुत आ रही है बट थोड़ी देर जलने के बाद वो बंद हो जाएगी. What happens in C? The candle does not burn in C because air is not available. Air है ही नहीं, air is not present. This shows that air is necessary for burning. I will also say that air is necessary for combustion. Combustion के लिए air बहुत जरूरी है. So let us revise. The first thing which is necessary for combustion is combustible substance or fuel, and the second thing is air. What is the third thing? Third thing is ignition temperature. This is a new term, some difficult term for you. Ignition temperature. It is the minimum temperature at which a substance catches fire and burns. ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर एक सब्सटेंस जो है उसमें आग लग जाती है. उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर. ओके, द सब्सटेंस, आप ये याद रखना, जब तक कंबस्टिबल सब्सटेंस में वो लगाने पे क्या मतलब आप जलाने की कोशिश करोगे, जब तक इग्निशन टेम्परेचर गेन नहीं करेगा तब तक वो उसमें कंबस्शन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल वुड, लकड़ी में आग जलाते हो एकदम से नहीं जलती है, उसको जलने में टाइम लगता है. वो जो टाइम है वो एक्चुअली क्या है, इग्निशन टेम्परेचर अटेन कर रहा होता है. ठीक है, जैसे ही उसे वो टेम्परेचर मिल जाता है, मतलब वो हीट मिल जाती है, वैसे ही जो वुड है वो जलने लग जाती है. सो ignition temperature, please remember, ignition temperature of different substances is different. मतलब जो different substances, जैसे ये आपको हमने पीछे दिखाया था, ये वुड का ignition temperature अलग है, कोल का अलग है, LPG का अलग है, केरोसिन का अलग है.
क्या आप मुझे बता सकते हैं वुड और केरोसिन में से कौन जल्दी जलेगा? Yes, you all know that kerosene will catch fire easily. वुड में थोड़ा टाइम लगेगा, कोल में थोड़ा टाइम लगेगा, एलपीजी में और भी बहुत जल्दी से आग लग जाती है, बिकॉज एलपीजी और केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर इज लेस देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द wood. Substances having low ignition temperature can easily catch fire with flame and they are known as inflammable substances. ऐसे substances जो जिनमें easily आग लग जाती है और आग लगने के बाद फ्लेम भी आती है, फ्लेम समझते हो ना, लपटें उठती हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम इनफ्लेमेबल, रेड से दिखाया है देखो, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी, ये सारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस भी हैं क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है. सो students, what we studied today, we studied about combustion, we studied about the conditions necessary for combustion. Please remember there are 3 conditions necessary for combustion: fuel, air and ignition temperature. Fuel is also known as combustible substance. अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ नहीं है तो उस सब्सटेंस में आग नहीं लगेगी, याद रखिएगा. और इसके बाद नेक्स्ट आपके सेशन में जो हम हैं वो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. अभी तक इतना ही. स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड. सी यू, बाय बाय, टेक केयर.